the answer of first input statement. Second, no graphics can be created in mode. Ma'am, screen 0. Screen 0, correct. Very good. Screen 0 is the by default mode, and in which we cannot write any graphics. We cannot draw any graphics. We can write only text because it is a text mode. Okay. The dash statement is used to set the screen resolution. Screen statement. Correct. Screen statement. Okay. Fourth one. Dash statement is used to add sound in QBasic. Beep. Correct. Beep. Beep and play both are there, but now options में सिर्फ beep है, तो इसलिए answer will be beep. Okay. Next question. Fill in the blanks. QBasic was developed by Microsoft. Microsoft. Dash are the values that do not change during the program. Constants. Constant. Correct. What are the two types of constants? Play. Corrective constant. Constant. Numeric constants and string constants. String constant. Okay. Okay. Next one. Dash statement is used to generate new Play statement. play statement. Okay. Fourth one. Dash constants are the numbers with fractional part. Real. Real constant. रियल तो जो फ्रैक्शनल पार्ट के बिना होते हैं वो कौन से होते हैं? इंटीजर constant. इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता वो कौन से होते हैं? इंटीजर. The constants numbers which are with the fractional part, they are the real constants or real numbers, and the constants with numbers without fractional part, they are integer numbers or integer constants. Okay, this statement terminates the program. End statement. Statement. हाँ जी, दो clear है, दो question हमारे correct answer and fill in the blanks. Okay. Okay, now true false. Circle statement is used to draw a line. False. 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 Integer constants are only negative numbers. False. False. Okay, next statement is used to assign values. True. Okay, fourth one. Screen 1 is the default mode of screen. False. 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 आप लोग भी कोई आंसर दे दो ना, जोर से बोल रहा है. The color code for red is 4. True. Okay, next is syntax. Syntax of the various statements. हमने already syntax मैंने आपको rough copy पे लिखवाए हुए हैं सारी statements के, right? What is the syntax for screen? Mode, screen mode या mode number. ठीक है, पहले screen keyword, then mode parameter या mode number, screen mode number. Screen, that is a keyword, then mode, screen mode या mode parameter. Screen 0, screen 1, screen 2, 12. That is a mode parameter. Okay, next one, second, color. Color, foreground color, comma, background color. Color, foreground color, comma, background color. Or it can be only without background color. Color F. Only foreground color. Background color नहीं देना, तब भी चलेगा. Then इसके आगे क्या लिखेंगे? Where F is foreground color and B is background color. जब आप copies में लिखोगे, you will write these syntax in your copies.
ठीक है, व्हेन यू राइट देम इन कॉपीज तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि एफ का क्या मतलब है और बी का क्या मतलब है। आपने 6 क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, ठीक है, साथ में ये भी लिखे हैं, सिंटेक्स फेयर कॉपीज पे लिखने हैं सबने, ओके। रीसेंड कर देना आज कॉपी, ठीक है। जिन बच्चों ने सेंड कर दिया ऑलरेडी कॉपी कल, प्लीज ऐड दी सिंटेक्स एंड देन रीसेंड द कॉपी अगेन टुडे। आई विल स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम टुडेस, ठीक है। कल वाली कॉपी चेक नहीं करूंगी जिन्होंने कल भेजी है, जो आज भेजोगे वहां से चेक करना स्टार्ट करूंगी। तो प्लीज माइंड इट, सिंटेक्स सबने फेयर कॉपी पे लिखने हैं, ओके। नाउ लाइन स्टेटमेंट, coordinates for starting point, then hyphen, then coordinates for the ending point, then comma, then color, ठीक है। line x1 comma y1 hyphen x2 comma y2 comma color, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन करोगे, where x1 comma y1 are starting coordinates and x2 comma y2 are ending coordinates, clear? Note down the complete syntax, then write these syntax in fair copy. हाँ जी बेटा, आपने लिख लिए? x1 are the starting coordinates and x2 y2 are the ending coordinates. R F is the foreground color and B is the background color. Now similarly write the syntax for circle command. Yes, what is the syntax for circle command? Hardik? Circle x comma y, then r comma p. Okay, Hardik, can you please give answer? Okay, circle x comma y, these are the coordinates for center point. Then color, sorry, पहले radius, then r and then color, ठीक है। अगर r लिखा है तो r को एक्सप्लेन करोगे, अगर रेडियस पूरा लिखा है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ वेयर x comma y are coordinates for center point and r is radius, ठीक है। Similarly, syntax for paint command. Paint command is used. Paint command is used. किसके लिए यूज हो रही है? कल यूज की हमने, क्यों यूज की थी? बोलो बोलो। Fill colors in the object. जोर से बोलो, इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? Fill paint command is used to fill colors in a object or in a shape. So what is the syntax for paint command? Paint x comma y, that is the starting coordinate for filling the color, कि कहाँ से fill करना start करना है. Then color, which color is to be filled, and then border color. Border color means the border color of the object in which you are filling the color, so that the color will stop there spreading. Color will stop spreading up to the border color. So x, y, where x and y are starting coordinates for filling the color. Starting coordinates for filling color. ठीक है जी?
Now all of you will write 6 question answers which we had discussed yesterday and 5 syntax of these statements: screen command, color command, line, circle and paint. In your fair copies, and you will send me the fair copies today. Clear? Anji, any doubt? Or shall I begin with the next statement? If anybody is having any doubt, you can ask me. Otherwise, I'm going to start with the next topic. Shall I repeat? Note down हो गया सबका? Okay. Now we are going to start with the next topic, the last topic of our syllabus. That is your if-then statement. If-then else statement. आपको याद है आपने फ्लो चार्ट करे थे क्लास में? डिसीजन सिंबल यूज किया था डायमंड वाला, जिसमें हम लिखते थे इफ a is greater than b या if age is greater than 18. Had you done that decision symbol? It was in the syllabus in the last year also. 6th class में आपके पास फ्लो चार्ट्स थे, उसमें एक डिसीजन सिंबल था डायमंड शेप में. मैम एक बार आंसर नंबर 3 एक बार दोबारा बता दो. डिफाइन वेरिएबल्स ग्राफिक्स इन क्यूबेसिक का क्वेश्चन नंबर कौन सा? डिफाइन वेरिएबल्स. Variable refers to the name of the data storage location in computer memory. It holds a value assigned by the user. ओके मैम, थैंक यू मैम. Okay. Now decision symbol में जो हम statement represent करते थे for making the decision, जिसमें से एक true answer होता था, एक false answer होता था. You remember that? Decision making symbol, decision symbol जो diamond shape में होता था, उसमें से एक true arrow आता था, एक false आता था. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पाथ फॉलो होगा, अगर फॉल्स है तो दूसरा पाथ फॉलो होगा. सेम स्टेटमेंट, सेम सिंबल इज रिप्रेजेंटेड इन क्यूबेसिक और इन एनी अदर लैंग्वेज बाय यूजिंग द इफ देन स्टेटमेंट. हमने बिगनिंग में स्टेटमेंट्स करी है, इनपुट स्टेटमेंट फॉर टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम यूजर. ठीक है, मैंने आपको रफ कॉपी पे एक्स्ट्रा हमने किया था प्रोग्राम. सेम स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग टू यूज नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द सिंटैक्स ऑफ द दिस इफ देन सिंबल, इफ देन स्टेटमेंट. If condition then statement. ठीक है, अगर तो हमारी एक ही स्टेटमेंट है और एक ही लाइन में आ रही है, then we can write it like this. If condition then statement. ठीक है, अगर हमारे पास इफ कंडीशन को ट्रू करने के बाद या फॉल्स होने के बाद we want more than one statements to write, then we will follow this syntax. Statements, more than one statements are there, and then we will write ending. ठीक है, if condition then उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो स्टेटमेंट्स हमें फॉलो करनी है, then end if, लास्ट में end if. एक सिंटेक्स और है जिसमें हम if, then और else तीनों यूज करेंगे. if condition then statements else statements and then end if. If there is a single statement, then we can write in single line. But if there are more than one statements, we have to write in separate lines. Okay, and better way ये है कि we write in separate lines and use the end if, so there will be no confusion. Okay, we will have to follow only one. Now, what is the use of this statement? This statement is used to make the decisions or to check the condition, and if the condition is true, then follow these statements. Otherwise, it will not use these statements. जो statements हमने if, then और end if के बीच में लिखी हैं,
those statements are executed only and only if the condition is true. जो कंडीशन हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, जैसे डिसीजन बॉक्स में हम कंडीशन लिखते थे, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर आपने लास्ट ईयर ये फ्लो चार्ट करा होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं करा था, ओके अगर कंडीशन, अगर एक नंबर बड़ा है तो दैट मीन्स वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, अगर मुझे ये करना है, अगर नंबर छोटा है तो मुझे कुछ और करना है, कुछ और एग्जीक्यूट करवाना है या कुछ और डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। तो डिपेंड करता है कि ये वाली स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगी, ओनली जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, देन द स्टेटमेंट्स आफ्टर द एंड इफ दे विल कंटिन्यू विद। बेटा मैं नहीं आ सकती, मेरी क्लास लगी, आप देखो कोई आता है, ठीक है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ इफ देन स्टेटमेंट? इट इज यूज्ड टू चेक कंडीशन, नहीं आप लिख सकते हो, it is used to check condition and take decisions according to that condition. If then statement is used to make decisions, it is used to take decisions depending upon the specified condition. It is used to take decisions depending upon the specified condition. For example, आपकी आज छुट्टी है, ठीक है, you want to go outside, आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, you decide if I get the movie tickets, I will watch the movie. If I did not get the movie tickets, I will go to the amusement park. So now your decision, you are having one condition. If we get that movie tickets, then we will do this. अगर वो नहीं मिली, false हो गया, then we will do this. Similarly, in the program, if one condition is true, then I will display this or I will do this calculation. If the condition is false, I will display the other statement, other message and other calculation. Okay, that kind of statements, that kind of programs or that kind of conditions will be checked with by using the if condition. ठीक है, अब थोड़ा सा समझ आया? अभी एक प्रोग्राम करते हैं इसके लिए। Write a program to find greater of two numbers. Write a program to find greater of two numbers. अब आपको दो नंबर्स लेने हैं, उसमें से ग्रेटर फाइंड करना है, क्या आंसर है। अब दो नंबर एज्यूम करने के लिए which statement will be used? We can take use the let statement also to assume the numbers. Let a is equal to this, let b is equal to this. But we can also use the input statement so that every time user run the program, it should ask me the numbers. Return the input statement जिसमें हमारे पास user number पूछता है program हमसे. So we will use the input statement and take two numbers from user. We will write first statement. आपको बताया था CLS to clear the output screen, and you can also write the rem statement to give remarks in a program. Remarks means the statement which is not executed during the execution of program. जो सिर्फ प्रोग्राम में दिखाने के लिए होती है कि यस ये हमारे पास एक कमेंट है, प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम किस बारे में है. So that statement doesn't have any result on any output of the program. तो रेम में एक कमेंट दे रही हूँ मैं, रिमार्क दे रही हूँ प्रोग्राम के बारे में, फाइंडिंग ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, then second statement will be CLS to clear the output screen. Then I'm going to use the input statement. Enter first number, semicolon A.
हमने सम ऑफ टू नंबर्स किया था बाय यूजिंग द इनपुट स्टेटमेंट, उसमें हमने ऐसे ही प्रोग्राम करे थे. प्लीज रिवाइज योर प्रोग्राम्स टिल द नेक्स्ट क्लास सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद दिस प्रोग्राम. उसके बाद प्रोग्राम अब आप लिख के दिखाओगे मुझे, तो बेटर है कि अपने प्रोग्राम जो हमने शुरू में इनिशियल में बिगनिंग में करे हैं वो सारे प्रोग्राम्स और स्टेटमेंट्स एक बार रिवाइज करके हम. ओके. सेकेंड इज इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर, सेमीकोलन बी. अब दो नंबर्स हमने ले लिए. अब मुझे चेक करना है कि दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा कौन सा है. क्या स्टेटमेंट लगेगी? इफ कंडीशन. सिंटेक्स में देखो, इफ के बाद क्या लिखा है? कंडीशन. कंडीशन क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी, देन कीवर्ड है इफ कंडीशन देन. अगर ट्रू है, अगर ए ग्रेटर है तो क्या करना चाहिए? मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे, मुझे बताए यस फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहो. तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. मैसेज डिस्प्ले करवा दिया प्रिंट के साथ. ठीक है. एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ए ग्रेटर नहीं है, बी ग्रेटर है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या मैसेज आना चाहिए? कंडीशन ट्रू होगी तो दैट मीन फर्स्ट नंबर ग्रेटर था, ए ग्रेटर था, मैसेज आ गया ए इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो दैट मीन्स ए ग्रेटर नहीं है, तो दूसरी ऑप्शन क्या है? सेकंड नंबर. तो दैट मीन्स सेकंड नंबर ग्रेटर है. ठीक है. तो मैसेज क्या आएगा? एल्स प्रिंट सेकंड नंबर इज ग्रेटर. और लास्ट में एंड. ठीक है. एंड लास्ट स्टेटमेंट जो हमारी प्रोग्राम की होती है, अगर इसके बाद कुछ और प्रिंट करवाना है हम करवा सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करनी है हम कर सकते हैं, बट अगर आपका प्रोग्राम फिनिश है तो वी कैन राइट प्रिंट. ठीक है. अगर कुछ और डिस्प्ले करवाना है, मैं यहाँ पे कुछ और भी करा सकती हूँ, कोई कैलकुलेशन भी करा सकती हूँ. प्रिंट ए प्लस बी, दोनों नंबर्स को प्लस करके दिखा दो, या प्रिंट प्रोग्राम फिनिश्ड, मैसेज डिस्प्ले करवा दिया. Anything, we can write anything, we can do anything after the end if statement. ठीक है. Now how this program will be executed? First input first number, it will ask you the first number, then it will ask you the second number, then it will compare if a is greater than b. Suppose मैंने first number enter कर दिया है 45 and second number मैंने enter कर दिया है 20. ठीक है. अब कंडीशन क्या बन गई? 45 is greater than 20. कंडीशन क्या है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू. कंडीशन ट्रू है. कंडीशन अगर ट्रू है तो देन स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी. देन स्टेटमेंट के बाद क्या लिखा है? प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. तो आउटपुट स्क्रीन पे आ गया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. अब जब एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक स्टेटमेंट इफ देन वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो गया, एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. वहां से स्किप करके सीधा एंड इफ पे आ जाएगा. एंड इफ पे क्या लिखा है? एंड इफ के बाद क्या लिखा है? प्रोग्राम फिनिश्ड. तो आउटपुट स्क्रीन पे एक और मैसेज डिस्प्ले हो गया, प्रोग्राम फिनिश्ड. ठीक है. अगर सिमिलरली अगर मैंने वैल्यूज एंटर कर दी हैं 25 एंड 60, सेकेंड टाइम प्रोग्राम रन किया, मैंने वैल्यूज एंटर कर दी 25 और 60. अब चेक करो, 25 इज ग्रेटर देन 60. कंडीशन क्या है? फॉल्स. अगर कंडीशन फॉल्स है तो देन स्टेटमेंट वाली एग्जीक्यूट नहीं होनी. देन के बाद जो स्टेटमेंट लगी है वो तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू है. जब कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्किप हो जाएगी स्टेटमेंट. दैट मीन्स इट इज यूजिंग टू एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. कि कंडीशन एक ट्रू है तो ये चलेगा, फॉल्स है तो दूसरा चलेगा, बाकी का पोर्शन स्किप हो जाएगा. हाँ लिखी हुई है ना, एल्स नीचे लिखा हुआ है, तो देन वाला पोर्शन उसने स्किप कर दिया. प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, वहां पे नहीं जाना, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इट विल फाइंड द एल्स पार्ट. प्रोग्राम अपने आप फाइंड करेगा एल्स कहाँ लिखा है.
जब एल्स पे जाएगा तो एल्स में देखेगा कि एल्स के नीचे क्या लिखा है, फिर वो चल जाएगा, वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड इफ के बाद जो लिखा है वो तो कंटिन्यूटी में चलना ही चलना, चाहे स्टेटमेंट ट्रू है चाहे फॉल्स है, बिकॉज वो इफ एंड इफ के ब्लॉक के बाद है। ठीक है, क्लियर है? We are having time. Let's do it with the QBasic. Anji, screen is visible. Okay. I'm going to write RAM finding greater of two numbers. Then CLS to clear the output screen. Then we are going to write input. Enter first number. आगे क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगी स्टेटमेंट? इनपुट सेकेंड नंबर, सेमीकोलन बी। नाउ अब क्या लिखो? इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन, ठीक है, then print first number is greater, double quotes close, else। तो देखो उसने अपने आप उसको नेक्स्ट पार्ट बना दिया उसका। print second number is greater and then ended। Now print program finish। बेटा ये ऑप्शनल है, ये लिखनी है या नहीं लिखनी है, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। एंड राइट एंड, ठीक है। प्रोग्राम को रन करके देखें। हाँ जी, फर्स्ट नंबर आई एम एंटरिंग 34, सेकेंड नंबर आई एम एंटरिंग सपोज 23, तो 34 इज ग्रेटर देन 23। मैसेज क्या आ गया? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, प्रोग्राम फिनिश। यानी एल्स वाला पार्ट जो था सेकेंड नंबर इज ग्रेटर वो नहीं चला। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, सिर्फ देन वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ, एल्स वाला प्रोग्राम पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, दोबारा रन कर रहे हैं। Now I am entering 45 and 60. Now see, second number is greater, program finished। सेकेंड नंबर क्यों ग्रेटर है? 45 और 60 दिया है, 45 इज ग्रेटर देन 60। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो देन वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ जहां लिखा था प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, तो कौन सा पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ? एल्स वाला। बेटा नंबर किस में स्टोर हो रहा है? ए में। हमने इनपुट जब फर्स्ट नंबर किया, एंटर फर्स्ट नंबर, सेमीकोलन ए दिया, तो जब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं, दैट वैल्यू इज गोइंग टू स्टोर इन ए। सेकंड वैल्यू जो एंटर कर रहे हो दैट इज गोइंग टू स्टोर इन बी। तो जब वैल्यूज वेरिएबल्स में आ रही हैं तो वेरिएबल्स को यूज करेंगे ना, वर्ड्स कंप्यूटर विल नॉट। कंप्यूटर को कैसे से पता लगेगा फर्स्ट नंबर क्या है? ठीक है, वी आर यूजिंग ए एंड बी फॉर रेफरिंग टू द वैल्यूज। हमने वेरिएबल क्या है? स्टोरेज लोकेशन का नाम, जहां पर वैल्यू स्टोर हो रही है। जब मैंने 45 एंटर करा, कंप्यूटर ने वो वैल्यू को किसी लोकेशन पे सेव किया टेम्परेरीली, उस लोकेशन का नाम क्या दे दिया? ए। ठीक है, आपको मैंने बुलाना है, मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी। सिमिलरली जब मैंने 45 वैल्यू को कॉल करना है तो 45 वैल्यू जहां स्टोर हुई है उस जगह का नाम लेंगे, ए। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो जब ए लिखा तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक द वैल्यू फ्रॉम दैट लोकेशन। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? नो? ओके, देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ टास्क। ठीक है, एक प्रोग्राम दे रही हूँ। हरमन, आर्यन, मनराज, मयंक, प्लीज एनी डाउट इन द स्टेटमेंट यू कैन आस्क मी। एनी डाउट इन एनी स्टेटमेंट?
Okay. Jalesh, clear है? Riddhima, Harmanpreet, is it clear? Rudra? Yes, Harman. Ma'am, Yes. ma'am, CLS statement. CLS statement is used to clear the output screen. Presently जो वर्जन मैं अभी यूज कर रही हूँ वहां पे CLS स्टेटमेंट अगर मैं नहीं भी यूज करूंगी इट इज गोइंग टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन. इट इज नॉट विजिबल नहीं है कि आउटपुट स्क्रीन CLS से क्लियर हो रही है या पहले से क्लियर है. बिकॉज जो प्रीवियस वर्जन QBasic के थे वहां पे ये होता था प्रोग्राम एक बार रन किया आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट आ गई. जब उसी प्रोग्राम को सेकेंड टाइम रन किया अगेन फर्स्ट प्रोग्राम की आउटपुट ऊपर नजर आ रही है नीचे सेकेंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. थर्ड टाइम एग्जीक्यूट किया फर्स्ट और सेकंड की आउटपुट आ रही है उसके नीचे थर्ड टाइम या थर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. So in that case we use the CLS statement in the beginning so that it will first statement read हो गई clear output screen. तो जो प्रोग्राम की आउटपुट ऑलरेडी स्क्रीन पर है उसको क्लियर करे then second प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे. That's why we use the CLS. But presently maybe कुछ वर्जन जो आप डाउनलोड कर रहे हो उनमें CLS स्टेटमेंट के बिना भी आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो रही है. ठीक है, बिकॉज वर्जन हैज बीन चेंज्ड. तो जो डेवलपमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे बिना CLS के भी आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो रही है. अगर नहीं हो तो वी कैन यूज द CLS स्टेटमेंट. हाँ, CLS स्टेटमेंट हम बीच में यूज भी कर सकते हैं. कई बार ये होता है कि हमने कुछ पोर्शन एग्जीक्यूट करवा लिया उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करना है एंड देन वांट टू एग्जीक्यूट द सेकंड पार्ट. ठीक है, तो उस केस में तो हमें CLS की जरूरत पड़ेगी. When we want to बहुत लेंथी प्रोग्राम है मैंने कुछ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो गई कुछ मैसेजेस आ गए नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट द सेकंड पार्ट तो वहां पे हम CLS करके फिर उसके नीचे का सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली. देन वी विल यूज द CLS स्टेटमेंट. क्लियर?